चलो तो बाह्य सामग्री सजीव પોતાના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે ઘણા બધા કાર્યો કરવા માટે એને બાહ્ય સામગ્રી શરીરની અંદર દાખલ કરવી પડે. એ કઈ કઈ બાહ્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે? તો પહેલું તો આપણને ખબર છે કે શ્વસન દ્વારા તે O2નો ઉપયોગ કરે છે. ત્યાર પછી બીજું, મોટાભાગના સજીવો, મોટાભાગના નહીં, બધા જ સજીવો સમજી લો, અહીંયા વનસ્પતિ હોય તો CO2નો પણ ઉપયોગ કરે છે, હે ને. મોટાભાગના સજીવો કાર્બન પર આધારિત છે. શેના પર આધારિત છે? જીવનનો મુખ્ય આધાર કાર્બન છે. કેમ કાર્બન છે? કે શરીરનું જે ઘડતર થાય છે, શરીર જે બને છે, शरीर जो बनता है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिना कार्बन के नहीं बनता, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 हाथ वाला होता है, हमें पता है. तो बहुत सारे पदार्थ को वो पकड़ के रख सकता है, जोड़ के रख सकता है, एक जगह से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है ना. तो इस प्रकार कार्बन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है. और ये कार्बन कहाँ से मिलता है? पृथ्वी में से ही मिलता है. मतलब पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में बहुत सारा खुराक है, वनस्पति के द्वारा बहुत सारा खुराक मिलता है इनसे, मतलब प्राणियों को. और वनस्पतियों को ज़मीन के अंदर से वो कार्बन मिलता है. कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से, और प्रकाश संश्लेषण की मदद से भी मिलता है ना कार्बन. तो मोटा भागना खाद्य पदार्थों कार्बन पर आधारित है. सेना पर आधारित है? कार्बन, है ना. જે પૃથ્વીમાંથી જ મળે છે મોટાભાગના અને એ કાર્બન જે છે એ કાર્બન સ્ત્રોતો બહુ જટિલ હોય છે. जटिल मतलब हिंदी में बोले तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, है ना. तो उसके आधार पर ही हम कोई भी खुराक को खा सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं. हमारे खून में वो अलग अलग पदार्थ कार्बन की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचते हैं. तो बाह्य आधार पर ऑक्सीजन और कार्बन मेन 2 घटक है ना. तो इसी प्रकार वो शारीरिक वृद्धि कर सकते हैं. ठीक है. સજીવ જીવન ટકાવી રાખવા માટે કઈ કઈ ક્રિયાઓ કરે છે? એટલે કઈ કઈ ક્રિયાઓ એવી છે કે જે શરીરને, સજીવને જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે? તો એની અંદર આવશે જીવન ટકાવી રાખવાની. જીવન ટકાવી રાખવા માટે સજીવને સૌથી પહેલાં તો શ્વસન જોઈએ, એ આપણે ભણી ગયા. ત્યાર પછી એને પોષણ કરવું પડે, અને શ્વસન અને પોષણ દ્વારા શરીરને ઉર્જા તો મળી જાય, પરંતુ આ પોષણ અને શ્વસનની અંદર જે ઓક્સિજન છે આપણે લઈએ, હે ને. આપણે પહેલાં મનુષ્યની વાત કરીએ એટલે બાકી બધું થોડું થોડું ઓટોમેટિક સમજાઈ જશે, વનસ્પતિનું પણ સમજાઈ જશે. પણ ઓક્સિજન જે આપણે લઈએ છીએ એ ઓક્સિજન આપણા શરીરમાં નાક દ્વારા દાખલ થઈને ફેફસા સુધી પહોંચે છે. ક્યાં પહોંચે છે? ફેફસા સુધી. આ ફેફસા સુધી પહોંચ્યા પછી ઓક્સિજન ક્યાં જાય છે અને કેવી રીતે જાય છે? તો હું તમને જણાવું કે ફેફસા સુધી પહોંચ્યા પછી એ ઓક્સિજન ફેફસાની અંદર આવેલા લોહી દ્વારા હૃદય સુધી પહોંચે છે, અને લોહી જે છે એ ઓક્સિજનને હૃદય દ્વારા આખા શરીરની અંદર પહોંચાડે છે. હૃદય દ્વારા એને ધક્કો લાગે છે અને રુધિરાભિસરણ તંત્ર, मतलब वहन तंत्र बोलते हैं, है ना. तो उसके द्वारा पूरे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है. ऑक्सीजन तो पहुंचता है, लेकिन वहाँ से हर एक कोशिकाओं में से CO2 वापस लाता है ना. CO2 वापस लाता है. तो ये कार्बन कहाँ से आ गया उसके पास? तो कार्बन तो हमने पोषण के द्वारा प्राप्त किया था, है ना. पोषण द्वारा આપણે કાર્બન મેળવેલો હતો. એ ખાવામાં, ખોરાકની અંદર આપણે જે કાર્બન મેળવેલો હતો, ફક્ત કાર્બન જ નહીં મેળવેલો હતો, એ ઉપરાંત આપણે શું શું મેળવેલું હતું? કાર્બન કઈ કઈ રૂપે મેળવેલો હતો? તો કાર્બન વિટામિન સ્વરૂપે, વિટામિનની અંદર કાર્બન હોય, પ્રોટીનની અંદર કાર્બન હોય, હે ને. ચરબીની અંદર કાર્બન હોય, પાણીની અંદર કાર્બન ના હોય, પણ એ પાણી પણ આપણે શરીરની અંદર દાખલ કરેલું, હે ને. વિટામિન, પ્રોટીન, ચરબી, પછી સ્ટાર્ચ તો રહી ગયું. સ્ટાર્ચ એટલે કે કાર્બોદિત પદાર્થ કહેવાય જેને. એ બધી વસ્તુ આપણે ખોરાક દ્વારા લઈએ અને એની અંદર કાર્બન હોય અને આપણા કોશિકાઓ સુધી પહોંચે. હવે કોશિકા શું કરશે? એની મદદથી શું શું બનાવશે? ઘણું બધું બનાવશે, પરંતુ દહન કરશે અને ઘણું બધું બનશે, અને પછી એક કોશિકા દ્વારા કોશિકાઓનો વિકાસ થશે, વૃદ્ધિ થશે. પરંતુ આ કાર્બન, વિટામિન, પ્રોટીન દરેક કોશિકા સુધી પહોંચાડશે કોણ?
જેમ ઓક્સિજનની વાત કરી તેમ ઓક્સિજનને શરીર સુધી કોણ પહોંચાડે છે? ફેફસા સુધી તો શ્વસન પહોંચાડી દે છે, પણ ફેફસાથી એ ઓક્સિજનને શરીરના કોષો સુધી કોણ પહોંચાડે છે? પોષણ દ્વારા મેળવેલું વિટામિન, પ્રોટીન, સ્ટાર્ચ, ચરબી, પાણી એ શરીરના દરેક કોષો સુધી કોણ પહોંચાડે છે? તો એના માટે જોઈએ છે રુધિરાભિસરણ તંત્ર, વહન તંત્ર, વહન પરિવહન તંત્ર. એટલે શરીરને જીવિત રહેવા માટે વહન અને પરિવહન તંત્ર પણ ઉપયોગી છે જીવન ટકાવવા માટે. વહન અને પરિવહન દ્વારા ફક્ત એવું નથી કે કોષો સુધી પહોંચાડે જ છે, પછી જો કોષો દ્વારા અમુક કોષોની અંદર ખરાબ પદાર્થ હોય, નકામો પદાર્થ હોય, જેમ કે કાર્બન વધારાનો પદાર્થ હોય, તો એ ઓક્સિજનની સાથે જોડી દે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બની જાય છે. એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે તેને ફરીથી લોહી દ્વારા, ખૂન દ્વારા હૃદય સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે रुधिराभिसरण तंत्र द्वारा, परिवहन तंत्र द्वारा. परिवहन तंत्र के द्वारा उसको हृदय तक पहुंचाया जाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हृदय के द्वारा वो फेफड़े तक पहुंचता है, तो वो भी परिवहन तंत्र के द्वारा पहुंचता है. बाद में फेफड़े के द्वारा वो कार्बन और खून अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और खून अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा, श्वसन के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं. उत्सर्जन मतलब उसको क्या बोलते हैं? श्वास लेना और श्वास छोड़ना. श्वास छोड़ते समय हम उसको बाहर निकाल देते हैं. तो वहन और परिवहन चाहिए. उसके अलावा कार्बन के अलावा दूसरे भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं होते. हमारे शरीर में मरी हुई कोशिकाएं होती है, मरे हुए पदार्थ होते हैं और जो काम के नहीं होते हमारे शरीर को, उसको भी हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है. तो वो कौन निकालता है? उत्सर्जन तंत्र. कौन निकालता है? उत्सर्जन तंत्र, है ना. और ये उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के बेकार के तत्व, बेकार के कचरा जो है उसको बाहर निकाला जाता है. जैसे कि हम जो मतलब बोलते हैं ना, उत्सर्जन तंत्र मतलब प्रवाही स्वरूप में बाहर निकलता है. मतलब हम जो मूत्र त्याग करते हैं तो मूत्र कैसे बनता है? तो खून में जो कचरा निकल जाता है कोशिका के जरिए परिवहन तंत्र के द्वारा वो उत्सर्जन तंत्र में पहुंचता है और वहाँ पे वो खून में से वो मूत्र मतलब उत्सर्ग द्रव्य बाहर निकलता है, अलग हो जाता है. अलग होने के बाद वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे मूत्र त्याग कर लेते हैं, हो जाता है. ये सब क्रियाएं, श्वसन, पोषण, वहन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्रिया करने के लिए हमको कौन समझाता है? ये उत्सर्जन तंत्र को कौन समझाता है कि भाई अभी ये कचरा निकालो? ये वाहन परिवहन तंत्र को कौन समझाता है कि भाई ऑक्सीजन हमने प्राप्त कर लिया? हम तो सो जाते हैं रात को तो भी ये काम करता है. हम सो जाते हैं तो भी वो पाचन करता है, हम सो जाते हैं तो भी वो श्वसन करता है, हम सो जाते हैं तो भी वाहन परिवहन करता है, तब भी उत्सर्जन करता है. तो उसको समझाता कौन है? तो उसके लिए जरूरी है दो चीज़ें. एक तो चाहिए तंत्रिका तंत्र. क्या चाहिए? तंत्रिका तंत्र. गुजराती में એને શું કહેવાય? गुजरातीમાં એને શું કહેવાય? ચેતાતંત્ર. चेतातंत्र जरूरी है ना. और उसके बाद उसके साथ साथ हमें हमारी ग्रंथियां जो होती है शरीर के अंदर, ग्रंथियों में से अंतस्त्राव निकलता है, तो अंतस्त्रावी तंत्र. तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर के जीवन को टिकाए रखने के लिए ये 6 प्रकार की वस्तुएं जरूरी है. कौन सी? ये 6 प्रकार की वस्तुएं जरूरी है ना. तो ये 6 प्रकार की वस्तुओं के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रक्षण का कार्य भी होता है ना. जहाँ पे कोशिका मरी हुई है या फिर हमारी कोशिकाओं को नुकसान हुआ है, वहाँ पे नई कोशिका पैदा करने का काम मतलब वो रक्षण हो जाता है. तो नई कोशिका ऐसे ही पैदा नहीं होती है, उसको पोषण मिलता है, श्वसन मिलता है, तब पैदा होती है. और वो कैसे वहाँ तक पहुँचता है? वहन के द्वारा पहुँचता है ना. और तंत्रिका तंत्र, वहाँ पे तंत्रिका तंत्र, अंतस्त्रावी तंत्र वहाँ पे हेल्प करता है. और तंत्रिका तंत्र का एक भाग है हमारा मस्तिष्क. मस्तिष्क मतलब मगज. मस्तिष्क मतलब गुजराती में मगज, ब्रेन, है ना. तो वो भी वहाँ पे हेल्प करता है. मगज के बिना तो हम कुछ मस्तिष्क के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना. तो ये सभी कार्य हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए जरूरी है. तो सजीवों के अंदर रक्षण का कार्य होते रहता है. रक्षण के साथ
होने वाली सभी क्रियाएं, है ना, सभी क्रियाएं मतलब श्वसन, पोषण, वहन, परिवहन, उत्सर्जन, मतलब तंत्रिका तंत्र द्वारा होने वाला कार्य, अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होने वाला कार्य, ये सभी क्रियाओं का अगर हम जोड़ कर दें तो ये सब जीवन टिकाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन पहले 4 प्रक्रिया जो है वो उस प्रक्रिया को हम जैविक क्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैविक क्रिया। हमारे चैप्टर का नाम है ना जैविक क्रिया। क्या नाम है हिंदी में? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जैविक क्रिया, जैव प्रक्रम, है ना। तो जैव प्रक्रम में कौन सी पहली 4 चीज़ें आएगी और उसको साथ जोड़ते हुए 5वीं और 6ठीं चीज़ भी उसमें आएगी। तो ये 6ठे चैप्टर में मेरे ख्याल से ये पहला 4 भाग है ना। पहले 4 टॉपिक इसके 6ठे चैप्टर के अंदर में इन सबको पढ़ना होगा। क्लियर हुआ? तो ये सभी क्रिया करने के लिए हमको क्या चाहिए? ये सब क्रिया करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा मतलब शक्ति चाहिए, है ना। तो सजीवों में ये सब और सभी क्रिया करने के लिए ये जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा की सही आवश्यकता क्या है ना। ऊर्जाની ખરેખર જરૂરત શું છે? તો સજીવોમાં આ બધી ક્રિયાઓ જે છે શ્વસન, પોષણ, વહન, પરિવહન, ઉત્સર્જન, તંત્ર દ્વારા થતી ક્રિયા, અંતઃસ્રાવી તંત્ર દ્વારા થતી ક્રિયા, આ બધી ક્રિયાઓ સતત ચાલ્યા કરે તે માટે ઊર્જાની જરૂર પડે. ઊર્જાની જરૂરત કોણ પૂરી પાડે છે? આહાર એટલે કે ખોરાક લેવાથી પોષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અને કારણ કે શરીરની વૃદ્ધિ, વિકાસ અને પ્રોટીનનું संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण क्यों जरूरी है? प्रोटीन के द्वारा ही तो प्रोटीन बनेगा, तभी तो हमारी कोशिकाएं बड़ी होगी और हमारा कोशिकाओं एक में से ज़्यादा होगी और वृद्धि होगी हमारे शरीर की. तो ખોરાક લેવાથી તેના જરૂરી ઘટકો શરીરને મળી જાય છે. ખોરાક લેવાથી શું થાય? આ બધી ક્રિયાઓ કરવા માટે જે ઉર્જા જોઈએ છે ઉર્જા માટે જરૂરી ઘટકો ક્યાંથી મળે છે? આપણને ખોરાકમાંથી મળે છે. અને આ ક્રિયાઓ બધી સતત ચાલ્યા કરે છે. કેટલી ક્રિયાઓ છે? 6 क्रियाओं. अपना शरीर में क्रमानुसार परिस्थिति ये सब क्रिया क्रमानुसार क्रमगत होती रहे, उसका रक्षण भी तो करना पड़ेगा कि श्वसन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, पोषण सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, वहन परिवहन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उत्सर्जन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र करता है. तो वो सब रक्षण की क्रिया है. क्या है? रक्षण की क्रिया. तो रक्षण की क्रिया के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जाની જરૂરત પડે. ક્લિયર થયું અહીંયા? तो सजीव जो है वो मतलब अपना पोषण मतलब खुराक, पोषण मतलब खुराक नहीं होता है लेकिन उसका पूरा परिभाषा मैं समझाऊंगा बाद में. तो खुद का जो खुराक है वो कहाँ से प्राप्त करता है ना. वनस्पति के लिए खुराक अलग है ना. प्राणी के लिए, प्राणी में भी अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं. एक कोशी, बहुकोशी, है ना. तो वो सब कहाँ से अपना खुराक प्राप्त करते हैं, है ना. फिर वो एक बहुकोशी में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना. कोई क्या होता है? मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मिश्राहारी होता है ना. तो वो सब अपना अपना खुराक कैसे प्राप्त करते हैं? तो બધા સજીવોમાં, सभी सजीवों में ऊर्जा और पदार्थ की आवश्यकता तो समान होती है, परंतु उसकी आवश्यकता को कैसे वो प्राप्त पूरी करता है वो तो अलग अलग तरीका होता है. वनस्पति को भी जितनी ज़रूरत है उतनी एक कोशी प्राणी को है, उतनी बहुकोशी प्राणी को है. मतलब सभी को आवश्यकता तो है ही, लेकिन उसको उसकी पूर्ति वो कैसे करता है? सबका अलग अलग तरीका होता है ना. तो कोई कोई सजीव जो है, जैसे कि वनस्पति की बात करें तो वो CO2 और H2O प्राप्त करता है ना. और कोई कोई सजीव है जैसे कि हमारे जैसे प्राणी की बात करें तो नॉर्मली तो वो ऑक्सीजन तो प्राप्त करता ही है. उसके अलावा कार्बनिक पदार्थ, केवल कार्बन नहीं होता, कार्बनिक पदार्थ होते हैं. कौन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ. जैसे जो भी हम खुराक लेते हैं ना वो सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, सभी के अंदर कार्बन है ना. कुछ भी खुराक आप ले लो वो उसके अंदर कार्बन है. तो वो कार्बनिक पदार्थ के द्वारा खुराक प्राप्त करते हैं, है ना. तो ये इसके अंदर वनस्पति के अंदर
क्या क्या आता है, मतलब जो CO2 और H2O, दो चीज़ के अलावा भी वो ज़मीन के अंदर से कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं, है ना। तो उच्च कक्षा के जो सजीव होते हैं, जैसे कि बहुकोषी सजीव, है ना, उसके अंदर भी ऑक्सीजन तो चाहिए ही। तो ये दोनों को ऑक्सीजन तो चाहिए, उसके साथ साथ वो कैसे प्राप्त कर, क्या क्या प्राप्त करते हैं, मैंने जैसे अभी बताया, कार्बनिक पदार्थ, है ना। कार्बनिक पदार्थ वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें से कोई वनस्पति को खा के वो अपने कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करते हैं। कोई वनस्पति को तो खा लिया, उसके बाद कोई मांसाहारी होते हैं, वो किसी प्राणी को खा के अपने खुराक को प्राप्त करते हैं, मतलब मांसाहारी बोलते हैं जिसको हम। और कोई वनस्पति और प्राणी दोनों को खाते हैं, जिसको मिश्राहारी बोला जाता है। बराबर है। तो ये पदार्थ अलग अलग जगह से इस तरह से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, खुराक।